السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192، لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی، اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن، حیدرآباد۔ سڑکوں کی نگہداشت میں ناکامی پر خانگی ایجنسی کو جرمانہ، گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن۔ لیک ویو ڈبل بیڈ روم مکانات کی تصویر کیٹیا نے ٹویٹر پر کی شیئر۔ حسین ساگر کے دامن میں 330 ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیرات پر فخر کا کیا اظہار۔ دائرہ میر مومن میں ناجائز قبضوں پر وقف بورڈ سے رپورٹ طلب۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی ہدایت، قابضین کو نوٹسیں جاری کی گئیں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے نامپلی میں ایریا ہاسپٹل میں ورکرز کو سیلری ادا نہ کی جانے کے بعد ورکرز کی جانب سے احتجاج۔ شہر حیدرآباد کے علاقے کالا پتھر پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس کی جانب سے چبوترا مشن کے دوران 70 بچوں کو پکڑتے ہوئے ان کی گئی کاؤنسلنگ۔ ریاست تلنگانہ میں 20 جون سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کے فیصلے کے بعد تمام تعلیمی اداروں کو 1 جولائی سے کھولنے کی اجازت۔ شہر حیدرآباد میں 2000 روپے کے نقلی کرنسی نوٹ تیار کرنے والے ایک شخص آٹو ڈرائیور کو شہر کے کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ پولیس نے کیا گرفتار۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ خبروں کی تفصیل۔ شہر حیدرآباد کے علاقے نامپلی میں واقع ایریا ہاسپٹل میں کام کرنے والے ورکرز نے تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہونے کے سلسلے میں ہاسپٹل کے احاطے میں دھرنا دیا، اور اس دوران انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت سے گزارش کی ہے کہ وہ ان کی تنخواہوں کو جلد سے جلد جاری کریں، کیونکہ انہیں اس دوران کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ میرا نام سید کریم ہے، میں ایریا ہاسپٹل نامپلی میں ڈیوٹی کرتا ہوں ہاسپٹل میں 2009 سے ڈیوٹی کرتا ہوں۔ ہماری AITC کی طرف سے اسٹرائک چل رہا ہے سیلری کے واسطے۔ AITC والوں سے بات کرے تو انہوں بولے جیو 10 سال پہلے پاس ہوا، ابھی تک جیو گورنمنٹ یہ نہیں کری۔ دیکھا گیا تو اصل جیو 5 سال میں ایک بار یہ کرنے کا ہے، 5 سال میں ایک بار 40% تنخواہ بڑھتی ہے ہماری۔ 5 سال دیکھا 10 سال ہو گیا، 10 سال میں اب تک 80% تنخواہ ہے ہماری۔ 80% کے حساب سے دیکھا گیا تو 25,000 تنخواہ ہو رہی۔ ہم 25,000 دیو بول کے بھی نہیں بول رہے، ہمارے کو 21,000 روپے ڈیمانڈ ہے ہماری، ہمارے کو 21,000 روپے سیلری ہونا ہے۔ بس KCR حکومت سے ہم یہی چاہ رہے کہ ہماری تنخواہ ہمارے کو دے دینا ٹائم پہ، اور جو ہمارا جیو ہے وہ جیو پہ عمل کر کے دے دیے تو ہو جاتا ہمارا۔ یہ ڈیلی 1 گھنٹہ چل رہا ہمارا 15 تاریخ سے، ڈیلی صبح میں 1 گھنٹہ کر رہے ہیں ہم 15 تاریخ سے آج تک کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ہمارے یونین والے ہو تو DME سر کے نے بات کرنے گئے، وہ DME سر سے بات کر کے منڈے کے دن بولتے کیا ہے تو بول کے بولے۔ کتنے ورکرس کی سیلری رکے گی؟ یہ سیلری تو ہماری 1 مہینے کی رکی ہوئی ہے، وہ تو دیتے بولے کنڈکٹر سے شکایت کچھ بھی نہیں ہے ہمارے کو۔ یہ جو بھی ہے ہمارے گورنمنٹ سے آنے کا ہے، KCR صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے کو ہمارا جیو ہمارے کو دے کے سیلری بڑھا دیے تو بہت یہ ہو جاتا ہے ہمارا۔
शहर हैदराबाद के इलाके काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की जानिब से चबूतरा मिशन मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी काउंसलिंग भी की गई। इस दौरान डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। अपना और अपने पुलिस वाले साहब भी अपने साथ रहते हैं, एक जुट के रहे तो कुछ बीमारी नहीं होती। के तहत यहाँ 70 बच्चों को लाके काउंसलिंग करके भेजें। इसका 2 मकसद है, एक लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना और लॉकडाउन वायलेशंस को कम करवाना, और जो कोई भी नौजवान बाहर घूम रहे हैं लॉकडाउन के बाद उनको यहाँ लाके काउंसलिंग करने से ये वायलेशंस कम होंगे। और पहले भी जब ये मिशन चबूतरा हम किए 3-4 साल पहले से, उस टाइम से हम देखें कि जहाँ भी ये ऑपरेशन किए हम, वहाँ वायलेंस कम हुई, राउडी वायलेंस कम हुई, बॉडीली ऑफेंसेस कम हुए और एरिया में अमन है। और हम अभी भी हमारी यही मकसद है और उम्मीद है कि ऐसा ही रिजल्ट्स अभी भी आएंगे। थैंक यू। रियासत तेलंगाना में 20 जून से लॉकडाउन खत्म करने के फैसले के बाद तमाम तालीमी इदारों को 1 जुलाई से खोलने की इजाजत दी गई है। ये फैसला रियासती काबीना ने हफ्ते को हंगामी इजलास के दौरान लिया, जिसमें तलबा को जिस्मानी तौर पर क्लासों में हाजिरी की इजाजत दी गई है। इतलात के मुताबिक 1 जुलाई से तालीमी इदारे खोलने का फैसला मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के अहदेदारों की जानिब से कोरोना के बारे में पेश की जाने वाली रिपोर्ट्स पर गौर करने के बाद लिया गया। काबीना ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत दी। मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और जिस्मानी दूरी बरकरार रखने को लाजमी करार दिया गया है। हैदराबाद में 2000 रुपए के नकली करेंसी नोट तैयार करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने नकली करेंसी नोट तैयार करने वाले एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जो अपने घर में नकली नोट तैयार करते हुए मार्केट में उसे तब्दील कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान केपीएचबी कॉलोनी से 28 साल राजू प्रसाद उर्फ राजू साकिन जेपी कॉलोनी पटनचेरू को गिरफ्तार कर लिया। क्लियर प्रिंटिंग, कलर प्रिंटिंग में महारत रखने वाले राजू ने OLX के जरिए कलर प्रिंटर की खरीदी की और 2000 की नकली करेंसी तैयार करने लगा। नकली नोट तैयार करने के बाद उसने अपनी मुकामी दुकानों में उन नोटों के जरिए खरीदारी की और उसके बाद उसने नकली करेंसी के जरिए कुकटपल्ली इलाके पहुंचा ताकि इन नोटों को तब्दील करवाया जा सके। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक होटल के करीब वो इंतजार में था कि आइन वक्त केपीएचबी पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 8 नोटों को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि इससे कबल भी राजू नकली नोट तैयार करने के इल्जाम में कई मर्तबा पकड़ा जा चुका है। ఓకే సార్. మన కేపీహెచ్బి పిఎస్ పరిధిలో ఫోరం మాల్ దగ్గర గ్రావిటీ హోటల్ దగ్గర నిన్న సాయంత్రం అంటే శ్యాంబాబు ఎస్ఐ గారు తన సిబ్బందితో కలిసి పెట్రోలింగ్ చేస్తున్న క్రమంలో ఉప్పరి రాజు ప్రసాద్ అలియాస్ రాజు అనే వ్యక్తి, అంటే అతను ఉండేది పటాన్చేరు జేపీ నగర్ కాలనీ రోడ్ నెంబర్ 2లో ఉంటాడు. ఒక 2000 రూపాయల నోట్లు తీసుకుని వచ్చి సట్లెడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న క్రమంలో అతన్ని అనుమానాస్పదంగా దిగుతుండగా అదుపులో తీసుకొని విచారించగా అతని వద్ద ఒక 8 నోట్లు దొరికినాయి. 2000 రూపాయల నోట్లు. ఆ 8 నోట్లు కూడా సీజ్ చేసుకుంటే అదేవిధంగా అతన్ని ఒప్పుకోల్లో ఏం చెప్పిందంటే, మా ఇంటి దగ్గర ప్రింటర్ కమ్ స్కానర్ ఇంటికి గురించి చెప్తే పటాన్చేరు వెళ్ళి అక్కడ పటాన్చేరులో ఇంకొక 2000 రూపాయల నోట్లను అదేవిధంగా ప్రింటర్ కమ్ స్కానర్ సీజ్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి నాకు ఫిర్యాదు చేయగా నేను దానిపై కేసు నమోదు చేసినాను. ఎవరైతే ఉప్పూరు రాజప్రసాద్ గతంలో కూడా మన మండవల్లి కృష్ణా జిల్లాలో, అదేవిధంగా ఏలూరు 1 టౌన్లో, అదేవిధంగా పటాన్చేరు, సంగారెడ్డి, మన బాచ్పల్లి కూడా ఇంతకుముందు గతంలో ఇదే దొంగ నోట్ల చలామణిలో అరెస్ట్ అయ్యిండు. అతనిపై మనం కేసు నమోదు చేసి కోర్టుకు పంపడం జరుగుతుంది.
ఒకడేనా సార్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇంకెవరైనా? ఒక్కడే ఇతడే ఏంటంటే ఎట్లా తయారని చెప్పి దాన్ని యూట్యూబ్లో చూసుకొని తయారు చేస్తున్నా చెప్తున్నాడు. అతనే ప్రింట్ చేసుకుంటూ అతనే చలమని చేస్తాడు వీటిని. ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఒక నోటును మాత్రం పటాన్ ఇస్నాపూర్లో ఒక చెప్పుల షాప్లో చెప్పులు కొని దాన్ని సర్క్యులేట్ చేసిండు. ఇప్పుడు మిగతా కూడా సర్క్యులేట్ చేసే ప్రయత్నంలో మనం ఈరోజు అదుపులో తీసుకొని కోర్టు పంపడం జరుగుతుంది. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी मलकपीट हल्के के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मोहम्मद सैफुद्दीन शफी कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीजन के हमरा वैक्सीनेशन कैंप का ओल्ड मलकपेट डिवीजन में इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर यूपीएचसी सेंटर ओल्ड मलकपेट डिवीजन में मस्जिद के इमाम और मंदिर पुजारी और चर्च के पादरियों के लिए खुसूसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और इस दौरान कैंप का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर डिप्टी DMHO डॉक्टर ब्रजेश उनेसा, मेडिकल टीम और दीगर सीनियर ओहदेदार और एक्टिव वर्कर्स वासु और दीगर मलकपेट डिवीजन के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। నా పేరు రాఘవ్ శర్మ, మలక్పేట్ మున్సిపల్ కాలనీలో ఉంటాను. హరిహర క్షేత్రం పూజారిని. ఇక్కడ మున్సిపల్ కాలనీలో ఈరోజు ఓవైసీ గారు, తర్వాత ఎమ్మెల్యే అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, తర్వాత ఎమ్మెల్యే బలాలా గారు, కార్పొరేటర్ షఫీబాయ్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ యొక్క సహాయ సహకారాలతోటి మున్సిపల్ కాలనీలో కేవలం పురోహితులకి, అర్చకులకి, తర్వాత ఫాదర్స్కి, తర్వాత మసీదులోని యొక్క పూజారులకి ప్రత్యేకించి ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ అందరూ కూడా అన్ని చోట్ల అంటే బాగా జనాలు గుమిగూడుతున్నారని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రత్యేకించి ఏర్పాటు చేసి అందరికీ కూడా వ్యాక్సిన్ సౌకర్యాన్ని ఇక్కడ కోవిషీల్డ్, కోవాక్సిన్ 2 వ్యాక్సిన్లు వేస్తున్నారు. ఎవరికి ఏది వేయించుకోవాలంటే అది వేయించుకోవచ్చు. ఈరోజు మధ్యాహ్నం వరకు కూడా ఇది నడుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకుని కోవాక్సిన్, కోవిషీల్డ్ ఏది కావాలంటే అది వేయించుకుని వాళ్ళు ఈ కరోనా బారి నుంచి పడకుండా జాగ్రత్త పడవలసిందిగా కోరుచున్నాను. మరొకసారి మన ఎంపీ గారు అయినటువంటి ఓవైసీ గారికి, తర్వాత ఎమ్మెల్యే బలాలా గారికి, షఫీబాయ్కి, వార్డ్ మెంబర్ అయినటువంటి వాసన్న గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. मैं मोहम्मद शहीमुल्लाह इमाम मस्जिद महबूब इंशान मलकपेट रेसकोर्स रोड। आप सब हजरात गुजारिश करता हूँ कि यहाँ माशाल्लाह मलकपेट पार्क में जो है ई सेवा के पीछे जो है कोविड वैक्सीन का माशाल्लाह माकूल इंतज़ाम किया गया है। हमारे मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब और बलाला साहब और एरिया वाइज कारपोरेटर हमारे शफी साहब की निगरानी में, और बहुत अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह। और जो है माशाल्लाह पुरसुकून माहौल है। आप सब हजरात से गुजारिश है कि इस अहम मौके से फ़ायदा उठाएं ताकि हमारा महल्ला और हमारा शहर और हमारा स्टेट और हमारा मुल्क जो है वो इस बुरी बीमारी से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अल्लाह ताला बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037 10882।
पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 1417 नए केसेस दर्ज हुए और गुज़िश्ता रोज 12 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। रियासत तेलंगाना में अब तक की कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,10,834 है और रियासत तेलंगाना में मरने वालों की कुल तादाद 3,546 है। आदिलाबाद में 6 कोरोना केसेस दर्ज हुए। भद्रादरी कोत्तागुड़म में 82, जीएचएमसी में 149, जगतियाल में 36, जनगांव में 13, जयशंकर भोपालपल्ली में 32, जोगुलांबा गदवाल में 10, कामारेड्डी में 7, करीमनगर में 87, खम्मम में 93, कुमरम भीम आसिफाबाद में 6, महबूब नगर में 25, महबूबाबाद में 60, मंझरियाल में 46, मेदक में 16, मिर्चल मलकाजगिरी में 61, मोलुगु में 26, नागर कर्नूल में 17, नलगुंडा में 88, नारायणपेट में 8, निर्मल में 2, निजामाबाद में 10, पेदापल्ली में 65, राजना सरसला में 26, रंगारेड्डी में 104, संगारेड्डी में 22, सिद्दीपेट में 43, सूर्यापेट में 85, विकाराबाद में 23, वनपर्ती में 37, वरंगल रूरल में 24, वरंगल अर्बन में 62 और यदाद्री भोंगिर में 46 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन को बर्खास्त कर दिया गया है। काबीना के हंगामी इजलास में ये फैसला किया गया। प्रगति भवन में मुनक्किद होने वाले काबीना के इजलास में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में लॉकडाउन बर्खास्त करने से मुत्तलिक फैसला किया। आज 19 जून को लॉकडाउन का आखिरी दिन है। कल 20 जून से तेलंगाना अनलॉक हो जाएगा। जराये के मुताबिक कोरोना वायरस के केसों में कमी को देखते हुए लॉकडाउन को खत्म करने का हुकूमत ने ये फैसला किया है। कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने खुफिया इतला मिलने पर मदिशेट्टी प्रसाद उर्फ प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया, जो कि कोविड-19 एंटीवायरल ड्रग इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर कोविफोर इंजेक्शन को भारी मकदार में और भारी कीमत पर जरूरतमंद अफराद में फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया और उसके कब्जे से भारी मकदार में इंजेक्शंस भी बरामद कर लिए। ऐसा लगता है कि हैदराबाद पुलिस को नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से बेइंतहा मोहब्बत है। हैदराबाद के शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया पर बयान जारी करने पर मुकदमात सख्त दफात के तहत दर्ज किए जा रहे। समाजी कारकुन सैयद सलीम, जिनकी चंद्रायन गुट्टा केस में जमानत हो गई थी, उनके खिलाफ हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने पीटी वारंट के तहत इश्तियाल अंगेज बयान के केस में मुकदमा दर्ज कर लिया। नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट ने सैयद सलीम की चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन केस में मशरूत जमानत मंजूर करके उनकी रिहाई का हुक्म दिया। मजिस्ट्रेट ने अपने अहकाम में कहा है कि सैयद सलीम की रिहाई के लिए 10,000 रुपए 2 जमानतें दाखिल की जाएं, जबकि उनका पासपोर्ट भी अदालत में जमा करवाया जाए। इसके अलावा इस केस की दरख्वास्त गुजार खातून के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर बयानात न दें। जैसे ही इस केस में जमानत की खबर मिली, साइबर क्राइम पुलिस के हुकाम एक पीटी वारंट की तामील के लिए नामपल्ली कोर्ट पहुंच गए और इस केस में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि जारिया साल 28 मई को साइबर क्राइम पुलिस ने अज खुद कार्रवाई करके सैयद सलीम के खिलाफ ताज़रात हिंद के दफा 15(3)A और दीगर दफात के तहत मुकदमा, जिसका क्राइम नंबर 100612021 है, दर्ज किया था। पुलिस ने इल्जाम आयद किया कि उन्होंने फेसबुक पेज हैदराबाद बस नाम ही काफी है पर अपना बयान जारी करके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दिया है। FIR में कहा गया है कि सैयद सलीम ने अपने बयान में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नाकाबिल एतराज अल्फाज का इस्तेमाल किया और इस बयान से हिंदू मजहब के अफराद के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है।
तेलंगाना में तेलुगुदेशम पार्टी के सफाई के लिए टीआरएस की जानिब से शुरू करदा मसाई में रुकावट पैदा हो चुकी है। साबिक वजीर इटाला राजेंद्र के काबीना से बरतरफी के फौरी बाद टीआरएस ने सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम एल रामन्ना से राब्ता कायम करते हुए पार्टी में शमूलियत की पेशकश की थी। एल रामन्ना पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखते हैं और वो करीमनगर के जगतियाल असम्बली हल्के की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इटाला राजेंद्र के साथ पसमानदा तबकात की तायद को रोकने एल रामन्ना की शमूलियत पर तवज्जो दी गई, लेकिन लम्हे आखिर में यह मामला तातल का शिकार हो गया। बताया जाता है कि रामन्ना ने टीआरएस में शमूलियत के लिए शर्त रखी है जो टीआरएस क़यादत को कबूल नहीं। रामन्ना ने कौंसिल की रुकनियत के साथ काबीना में शामिल करने की शर्त रखी है, जबकि टीआरएस की जानिब से सिर्फ एमएलसी निशस्त का पेशकश किया गया। सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याब अफराद वो अफराद खानदान हुकूमत की तिब्बी अखराजात की बाज़ादायगी स्कीम से इस्तेफादा कर सकते हैं। ऐसे मुलाजमीन वजीफा याबान या अफराद खानदान जो कोरोना मुतासर हुए और जिनका खानगी दवाखानों में इलाज किया गया हो, वो इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकते हैं और उन्हें 1 लाख रुपए तक की बाज अदायगी की जाएगी। सेक्रेटरी हेल्थ सैयद अली मुर्तजा तजवी ने ये बात बताई। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव प्रगति भवन को किसी तानाशाह के किले में तब्दील कर रहे। प्रगति भवन के अतराफ सिक्योरिटी इंतजामात में इजाफा और सड़क पर मौजूद डिवाइडर्स को सिक्योरिटी जोन में शामिल करने पर तबसरा करते हुए डॉक्टर नारायणा ने कहा है कि केसीआर एक जमहूरी चीफ मिनिस्टर के बजाय निजाम हैदराबाद की तरह हुकूमत करना चाहते हैं। प्रगति भवन के रूबरू पहले से सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात हैं, बावजूद इसके रोड डिवाइडर को भी सिक्योरिटी जोन में शामिल कर लिया गया है, जिसके नतीजे में आवाम को दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने सवाल किया कि प्रगति भवन जमहूरी चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह है या फिर निज़ाम का कोई किला है। केसीआर आवाम की मुंतखब करदा चीफ मिनिस्टर हैं और अवामी तहरीक में हिस्सा लेकर इस ओहदे तक पहुंचे हैं। अवाम के दरमियान रहने के बजाय वो अवाम से दूरी इख्तियार कर रहे। नायराना ने कहा है कि मसाइल की अदम यकसोई पर लोग प्रगति भवन के करीब इक़दाम खुदकुशी और धरने के लिए मजबूर हैं। चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल हल करें। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों। सड़कों की निगहदाश्त में नाकामी पर खानगी एजेंसी को जुर्माना, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेक व्यू डबल बेडरूम मकानात की तस्वीर केटीआर ने ट्विटर पर की शेयर। हुसैन सागर के दामन में 330 डबल बेडरूम मकानात की तामीरात पर फख्र का किया इजहार। दायरा मीर मोमिन में नाजायज कब्जों पर वक्फ बोर्ड से रिपोर्ट तलब। तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत, काबजीन को नोटिसें जारी की गयी। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में एरिया हॉस्पिटल में वर्कर्स को सैलरी अदा न की जाने के बाद वर्कर्स की जानिब से एहतजाज। शहर हैदराबाद के इलाके कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की जानिब से चबूतरा मिशन के दौरान 70 बच्चों को पकड़ते हुए उनकी की गई काउंसलिंग। रियासत तेलंगाना में 20 जून से लॉकडाउन खत्म करने के फैसले के बाद तमाम तालीमी इदारों को 1 जुलाई से खोलने की इजाजत। शहर हैदराबाद में 2000 रुपए के नकली करेंसी नोट तैयार करने वाले एक शख्स ऑटो ड्राइवर को शहर के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने किया गिरफ्तार।
विशनरी जूनियर वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज, माहिरीन असातिज़ा की निगरानी में वेल फर्निश्ड लैब, हर साल 92% से ज्यादा रिजल्ट। कोर्सेज ऑफर्ड इन जूनियर कॉलेज, BPC, MPC, CEC, MEC. Courses offered in vocational college, CSC, MLT, MPHW. Degree courses, BCom General, BCom Computer and BBA. Visionary Junior Vocational and Degree College. हर तालिब इल्म के लिए स्कॉलरशिप की सहूलत, कंसेशन फॉर यतीम, सिंगल पेरेंट और कोविड विक्टिम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बस एंड ऑटो स्टैंड के करीब। विशनरी जूनियर वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज, अब्दुल्ला बिल्डिंग, खिलबत, हैदराबाद। Contact 939044104 and 78420222660। साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।